Hello and welcome to We Learn Virtual Learning Network. This is session number 16 of Hindi. Topics to be covered in this session are वाक्य प्रकरण, that is syntax, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, that means idioms and proverbs, and कुछ प्रचलित लोकोक्तियाँ, that is some commonly known proverbs we'll learn in this session. Let us start with syntax, that is वाक्य प्रकरण. एक विचार को पूर्णता से प्रकट करने वाला शब्द समूह वाक्य कहलाता है. In which you get to know the information of one complete sentence that we call in English. It is called as शब्द समूह and it is called as वाक्य in Hindi. Now, according to their creation, we have three different types of sentences. First one is simple sentence, that is साधारण वाक्य. Second, compound sentence, संयुक्त वाक्य. Complex sentence, that is मिश्रित वाक्य. Now let us study them in detail. What is actually साधारण वाक्य? अगर हम ध्यान से पढ़ें तो सिंपल सेंटेंस क्या है? बच्चा दूध पीता है, कमल गेंद से खेलता है, मृदुला पुस्तक पढ़ रही है. In these sentences, we have only one doer of the action and only we have one verb in the sentence. Those sentences which have only one verb and one doer of the action, they are called simple sentences, that is साधारण वाक्य. जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य, that is कर्ता, और एक ही समापिका क्रिया हो, वह साधारण वाक्य कहलाता है. संयुक्त वाक्य. ठंडी हवा चल रही थी, इसलिए मैं जल्दी नहीं उठ सका. मैंने तुम्हारी काफ़ी प्रतीक्षा कर पर तुम नहीं आए. हम कार्य तो करना चाहते हैं किंतु उसे भली भांति नहीं कर पाते. In these sentences you can see two sentences. One complete sentence has two separate independent sentences which are joined by conjunctions. Maybe इसलिए, पर, किंतु समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हैं. So these two separate independent sentences are joined with conjunction which are called समुच्चय बोधक अव्यय in Hindi. It can be इसलिए, पर, किंतु. ऐसे वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं तथा जुड़े हुए वाक्य समानाधिकरण उपवाक्य कहे जाते हैं. दो या दो से अधिक साधारण वाक्य जब समानाधिकरण समुच्चय बोधकों से जुड़े होते हैं तो वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं. So when we have two separate small sentences, they are joined by some conjunction, they are called as संयुक्त वाक्य. मिश्रित वाक्य. मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये साइकिल मेरी है. जो मेहनत करता है वह फल पाता है. मालूम होगा कि आज वर्षा होगी. जब किसी विषय पर पूर्ण विचार प्रकट करने के लिए कई साधारण वाक्य को मिलाकर एक वाक्य की रचना करनी पड़ती है, तब ऐसे रचित वाक्य मिश्रित वाक्य कहलाते हैं. So you can understand here, जब when we want to express our thoughts, we take the help, we construct the sentence with two separate small simple sentences and what we create is a mishrit vakya. You can see here in the examples, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ what, यह साइकिल मेरी है. So when we want to complete the, when we want to express the whole information or to express the whole knowledge or information about something, we use these kind of sentences. Now, idioms and proverbs. In Hindi they are called as मुहावरे और लोकोक्तियाँ. Let us study them here. First one is अंग अंग मुस्काना. That means बहुत प्रसन्न होना. That is you are very happy. We can understand this from the sentence here. आज उसका अंग अंग मुस्कुरा रहा है. That means he is very happy today. अंग अंग ढीला होना. That means बहुत थक जाना. That means you are tired enough.
तुम्हारे साथ कल चलूँगा, आज मेरा अंग अंग ढीला हो रहा है. दैट मीन्स आई विल नॉट गो विद यू टुडे बिकॉज आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड. अकल का दुश्मन, दैट मीन्स मूर्ख, वह तो नीरा अकल का दुश्मन है. दैट इज ही इज कंप्लीटली मैड. आंख दिखाना, दैट इज गुस्से से देखना. That means whenever you are angry, you see with eyes open. That expression is called आँख दिखाना. So जो हमें आँख दिखाएगा हम उसकी आँख फोड़ देंगे. आँखों में धूल झोंकना, that is धोखा देना, that is to cheat somebody. शिवाजी मुगल पहरेदारों की आँखों में धूल झोंककर बंदी गृह से बाहर निकल गए. आँखों का तारा, that means अति प्रिय. That means you are someone's very special in the liking of somebody. आशीष अपनी माँ की आँखों का तारा है. कान भरना, that is चुगली करना. अपने साथियों के विरुद्ध अध्यापक के कान भरने वाले विद्यार्थी अच्छे नहीं होते. कान पर जूं तक न रेंगना, that is whatever anybody says, it doesn't impact you, it doesn't affect you at all. माँ ने गौरव को बहुत समझाया पर उसके कान पर जूं तक न रेंगी. नाक में दम करना, बहुत तंग करना, दैट इज आतंकवादियों ने सरकार की नाक में दम कर रखा है. नाक रगड़ना, दैट इज दीनता दिखाना. गिरह कट ने सिपाही के सामने खूब नाक रगड़ी पर उसने उसे नहीं छोड़ा. मुंह की खाना, दैट इज हार मानना. पड़ोसी के घर के मामले में दखल देकर हरद्वारी को मुंह की खानी पड़ी. दैट इज यू कन्फेस दैट you cannot able to fight now, you feel that you cannot fight now, so you confess that is called मुंह की खाना. मुंह में पानी भराना, दिल ललचाना, that is you want something and you feel like having it. लड्डुओं का नाम सुनते ही पंडित जी के मुंह में पानी भर आया. दांत खट्टे करना, that is बुरी तरह हराना. Defeating somebody in a very bad manner or at a very low level, at that kind we say defeating somebody. भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों के दांत खट्टे कर दिए. गले का हार, दैट मीन्स बहुत प्यारा. तुम तो उसके गले का हार हो, भला वह तुम्हारे काम को क्यों नहीं करने मानेगा. हाथ पर हाथ धरकर बैठना, दैट इज निकम्मा होना. who do not have any work, the person who do not have any work, sitting idle. उद्यमी कभी भी हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठते हैं, वह तो कुछ ना कुछ करके ही दिखाते हैं. हाथ मलते रह जाना, दैट इज पछताना. जो बिना सोचे समझे काम शुरू करते हैं वे अंत में हाथ मलते रह जाते हैं. ईद का चांद, दैट इज बहुत कम दिखना, दैट इज यू आर नॉट एबल टू सी समबडी कम्स आफ्टर सो मेनी डेज. लाइक मित्र, आजकल तुम ईद का चांद हो गए हो, कहाँ रहते हो. कोलू का बैल, दैट इज निरंतर काम में लगे रहना, यू कीप ऑन डूइंग ए वर्क. कोलू का बैल बनकर भी लोग आजकल भरपेट भोजन नहीं कर पाते. गड़े मुर्दे उखाड़ना, दैट इज पिछली बातों को याद करना. गड़े मुर्दे उखाड़ने से तो यही अच्छा है कि अब हम चुप रहें. दैट मीन्स रिमेंबरिंग द ओल्ड और पास्ट डेज मेमोरीज. छक्के छुड़ाना, अगेन डिफीटिंग समबडी. पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी के छक्के छुड़ा दिए. तलवे चाटना, दैट इज खुशामद करना. तलवे चाट कर नौकरी करने से तो कहीं डूब मरना अच्छा है. दौड़ धूप करना, दैट इज कठोर श्रम करना, डूइंग हार्ड वर्क. आजकल दौड़ धूप करने से ही कुछ काम बन पाता है. 9-2-11 होना, भाग जाना. बिल्ली को देखते ही चौहे 9-2-11 हो गए, दैट इज रनिंग अवे. लोहे के चने चबाना, दैट इज बहुत कठिनाई से सामना करना. मुगल सम्राट अकबर को राणा प्रताप के साथ टक्कर लेते समय लोहे के चने चबाने पड़े. राई का पहाड़ बनाना,
छोटी सी बात को बहुत बड़ा देना, तनिक सी बात के लिए तुमने राई का पहाड़ बना दिया. सो अ स्मॉल इशू when we make it at a very large or high scale, and small issue comes into the light and it becomes so big sometimes. So that is called राई का पहाड़ बनाना. तनिक सी बात के लिए तुमने राई का पहाड़ बना दिया. Now some common proverbs here. जिसकी लाठी उसकी भैंस. That is शक्तिशाली की विजय होती है. Those who are stronger, पावरफुल, दे ओनली विन. अंग्रेजों ने सेना के बल पर बंगाल पर अधिकार कर लिया. दूध का दूध पानी का पानी. दैट इज सच और झूठ का ठीक फैसला. दैट इज राइट जस्टिस बिटवीन ट्रुथ एंड फॉल्स. सरपंच ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिखाया. ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी. कारण के नष्ट हो जाने पर कार्य ना होना. सारा दिन लड़के आमों के लिए पत्थर मारते रहते थे. हमने आंगन में से आम का वृक्ष ही कटवा दिया. ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी. मान ना मान मैं तेरा मेहमान. दैट मीन्स गोइंग टू somebody's हाउस when you are not invited. सो एक अमेरिकन कहने लगा, मैं 1 मास आपके पास रहकर आपके रहन सहन का अध्ययन करूँगा. मैंने मन में कहा, अजब आदमी है, मान न मान मैं तेरा मेहमान. अंत भला तो सब भला. सो एवरीथिंग दैट एंड्स वेल इज़ वेल. शाम पढ़ने में कमज़ोर था, पर परीक्षा का समय आते आते पूरी तैयारी कर ली और प्रथम श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण की. इसी को कहते हैं अंत भला तो सब भला. Now some do it yourself questions for you so that you can revise them and learn them better, remember them better for your future also. So the questions for you are, write 5 idioms and proverbs in your notebook with their meanings and sentences. Write 5 lokoktiyan in your notebook with their meanings and sentences so that you can learn these better and can use them in your future. So that is all for this session. Thank you. Thanks a lot. Happy learning. We learning.